Welcome to session 12 of Sales Management. Students, here we will understand about budget. The topics covered in this session are budget, budget and organization, benefits of budget, problems in implementing budget and types of budget. Here we'll understand the term budget. Budget is very important for any organization, and for various departments organization has to set budgets. So budget is what it is. It is just like a plan. We are planning for future expenses as well as revenue. So with the help of budget we can estimate our expenses as well as revenue. In this slide, as you can see, an estimation of revenue and expenses over a specified future period of time is known as budget. So इसमें हम फ्यूचर टाइम पीरियड में हमारे पास क्या रेवेन्यू होंगे, कंपनी के क्या रेवेन्यू रहेंगे, क्या एक्सपेंसेस होंगे, उस चीज़ को हम एस्टिमेट करते हैं. Second thing is budget is a plan that outlines organization financial goals. Yes, as you know, financial goals are related with the money only. So in budget also we are including revenue and expenses which are in terms of money. So it is a plan that focuses on the financial goals or fulfills the financial goals in an efficient manner. It is a financial document used to project future income and expenses. It is just like a document. Financial, why we call it as financial document? Because it includes revenue as well as expenses in terms of money that projects or estimate future income and expenses. Now comes to बजट एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, कोई भी बजट सेट करने के लिए या बजट हम क्यों सेट करते हैं? टू अचीव द फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो वी कैन से दैट अ बजट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल ओवरव्यू ऑफ प्लान्ड कंपनी ऑपरेशंस. कंपनी ने जितने भी अपने ऑपरेशंस प्लान किए हैं उसके लिए एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है बजट. राइट नाउ कम्स टू द हाउ बजट्स बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. First benefit for the budget is it compels managers to think ahead. Here managers they have to forecast future, they have to think ahead. Means कि यहाँ पर budget is related with the estimation of future revenues as well as expenses. तो यहाँ पर मैनेजर को आगे की सोचने की ज़रूरत पड़ती है and it compels them to think for future. Second is it provides an opportunity to re-evaluate existing activities and evaluate new ones. That means कि जो हमने पहले बजट बनाए हैं तो उसके बेस पे हम will re-evaluate our existing और यू कैन से कि जो हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ किए हैं उसको हम कंपेयर करेंगे एंड देन विल री एवेल्यूएट द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़. और अगर उसके अंदर कुछ डेविएशंस आते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है उसको रिवाइज करने की, रिव्यू करने की, देन विल गो विद न्यू वंस एंड इवेल्यूएट द न्यू अपॉर्चुनिटीज़. Next, third benefit is it aids managers in communicating objectives and coordinating actions across the organization. That means कि it helps the managers कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, उसके क्या गोल्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस चीज़ को कम्युनिकेट करने में बजट काफ़ी हेल्प करता है मैनेजर्स की. एंड इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट वर्क करते हैं लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और वी कैन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. तो अगर हमारे पास हर डिपार्टमेंट के बजट्स अवेलेबल होंगे तो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा. दैट मीन्स कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लाइक से 20 lakhs एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करना है, राइट, लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट का बजट अवेलेबल नहीं होगा तो हम 20 lakhs के लिए ही जाएंगे, 20 lakhs खर्च करेंगे. अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट का बजट देखें वहाँ पर उनके पास जो
मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बजट रहेगा फॉर एग्जांपल 15 lakhs है, देन द मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे हैज़ टू यूज़ ओनली 15 lakhs फॉर द advertisements. So it helps you out, it helps the managers in coordinating the actions of various departments. Now comes to human relations problem. What are the problems that while setting out the budgets? First problem is low level of participation. Means while setting out the budget, there is very low level of participation in the budget process and lack of acceptance of responsibilities. क्योंकि जब भी बजट बनाया जाएगा तो यहाँ पर हमें सभी की पार्टिसिपेशन, हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत रहेगी, और उसके बाद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है कि किसको कितना काम करना है, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस. दैट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग इज़ इंसेंटिव्स टू लाई एंड चीट इन द बजट प्रोसेस. मीन्स कभी कभी इसके अंदर बजट प्रोसेस के अंदर हम कुछ ऐसे इंसेंटिव्स रख देते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चीट करती है, तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम अराइज करता है. थर्ड थिंग इज़ डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट. मीन्स कि अगर हम मार्केटिंग के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें वेल इन एडवांस सेल्स फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक्यूरेट सेल फोरकास्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती. दैट इज़ द डिफ़िकल्टी. एंड here the management should seek to create an environment where there is a true two-way flow of information. means कि information आपकी smooth होनी चाहिए, true होनी चाहिए, from top to bottom or bottom to top. Next is the potential problems in implementing budgets. It includes participative budgets are formulated when active participation of all affected employees. अब देखते हैं कि पार्टिसिपेटिव बजट क्या है. पार्टिसिपेटिव बजट ये वो बजट होते हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है. एंड सेकेंड थिंग इज मैसेज कन्वेड बाय द बजट सिस्टम मे बी मिसअलाइंड विद इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पनसेशन सिस्टम. कभी कभी जो कॉम्पनसेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है बजट्स में, वो उसका प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, उसका कॉम्पनसेशन का प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, प्रॉपरली इंसेंटिव्स कन्वे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं बजट्स में. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ बजट्स. एज यू कैन सी देयर आर, in broadly speaking we can say there are 5 budgets: strategic plan, long range planning, capital budget, continuous budget, and final is the master budget. First we'll see master budget. master budget means कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे होते हैं वो डिपार्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे अपने बजट सेट आउट करते हैं. लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. तो सेल्स डिपार्टमेंट होगा तो उसका अपना बजट रहेगा, सेल डिपार्टमेंट का सेल बजट रहेगा, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बजट, डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन बजट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस बजट. व्हेन दीज ऑल बजट्स आर देयर इन अ सिंगल बजट, और वी कैन से कि समरी जहाँ पर कंटेन होती है इन सभी चारों डिपार्टमेंट्स के बजट्स की, उसको हम बोलेंगे मास्टर बजट. सो वी कैन से दैट अ मास्टर बजट इज़ अ डिटेल्ड and comprehensive analysis of the first year of long range plan, and it also summarizes the planned activity of all the subunits of an organization. I think it is clear to you. ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को वो क्लब करता है. नेक्स्ट इज द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग द मास्टर बजट. मास्टर बजट में प्रिपेयर करने के लिए देयर आर 3 steps. One is the basic data. Means
basic data, basic information is required for preparing master budget. Second one is operating budget, ऑपरेशनल एक्टिविटी पे क्या काम हो रहा है, ऑपरेशन लेवल पे क्या काम हो रहा है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन इस बजट में कंटेन रहेगी. एंड थर्ड इज़ द फाइनेंशियल बजट, मीन्स कि बजट के लिए फंड्स कितने अवेलेबल हैं. फाइनेंशियल बजट इट प्रोवाइड्स द बेस टू द मास्टर बजट ना. नाउ कम्स टू प्रिंसिपल स्टेप इन प्रिपेयरिंग मास्टर बजट. बेसिक डेटा कहाँ से अवेलेबल रहेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें सेल्स बजट से. सेल्स बजट इट कंटेन्स कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स के से हमारे पास कितना कैश कलेक्ट होगा, दिस प्रोवाइड्स बेसिक डेटा. परचेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, cash disbursement for purchases. Here disbursements means the payments for purchases. Cash operating expenses budget, cash disbursement for operating expenses. तो ये सभी जो डेटा है that is this provide the basic data, right? Now comes to operating budget. Operating budget it includes here at operational level we will or the firm will collect cash from the customer which is given in sales budget. अब ये जो यहाँ पर हमारा कैश कलेक्शन होगा इसी से हम परचेज करेंगे. that will purchase budget it will show the disbursement for purchases. And third thing is operating expenses budget, that means disbursement for operating expenses, means operating expenses budget उसमें क्या शो किया जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कितनी पेमेंट होगी. This you can see master budget is in two parts, operation budget and financial budget. Operation budget focus on the operational activity means the income statement or and supporting schedules or budgeted expenses, right? And financial budget is what it focuses on the effects that the operating budget and other plans will have on the cash balances. तो ऑपरेटिंग बजट बेसिकली जो फाइनेंशियल बजट है यही हमारे पास कैश बैलेंसेस लेकर के आते हैं. तो बिजनेस के पास कितना कैश रहेगा, दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय द फाइनेंशियल बजट ओनली. Here is the slide for financial budget. Financial budget contains cash budget which is in the form of a statement of planned receipts, cash receipts and disbursements. कंपनी के पास कैश कहाँ से आ रहा है, कैश रिसिप्ट्स कौन सी हो रही है और पेमेंट्स वो कहाँ कहाँ पर कर रही है कैश पेमेंट. सो कैश बजट कंटेन्स 3 सेक्शंस. अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है, मीन्स करंट कैश बैलेंस बिजनेस के पास कितना है, कंपनी की नेट रिसिप्ट्स क्या है एंड डिसबर्समेंट्स क्या है, और फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ फंड्स मतलब कैश वो कहाँ से कलेक्ट कर रही है, कौन से सोर्स यूज़ कर रही है वो कैश अवेलेबल कराने के लिए. दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन. इन लास्ट you have to explain 2 questions. These are explain various types of budget and second is explain budget and significance of budget. Thank you very much.